जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दिस इज स्मृति द्विवेदी और हम पढ़ेंगे जनरल स्टडीज फॉर FCAT 1 2022 एग्जामिनेशन सो दैट वी विल स्कोर 200 plus marks easily in the upcoming examinations. I hope you guys are revising regularly and also making your own short notes so that the content which we are studying is retained for a longer period of time. So, today we will be studying about rivers and dams in the India. We will be studying about Indus River system, Ganga River system, Brahmaputra River system, peninsular rivers, and the important dams in India. So before moving forward, let's discuss yesterday's question. So yesterday I asked that Ramcharitmanas was written in which dialect? So Ramcharitmanas, it is a rachana of the creation of Goswami Tulsidas, and it is the story of Lord Ram, and it was written in Awadhi dialect. Now, what are dialects? So dialects, they are the regional variation of a language. So Awadhi is a dialect of Hindi and it is prominent in the Awadh region. Now Awadh region includes the if we look at the history, it includes the region where the Lord Rama rules, and in modern day it includes the districts of Lucknow, Ayodhya, Bahraich, Balrampur, and the Gonda district. So the next question was Alai Darwaza. So Alai Darwaza, it was built by Alauddin Khilji. It is as shown in the picture. It is the southern gateway to Quwwatul Islam Mosque, and Quwwatul Islam Mosque was built initially by Qutbuddin Aibak, but it was completed by Iltutmish. Now, the next question was Tahqiq-e-Hind. So, Tahqiq-e-Hind, it was written by Al-Biruni. So, Al-Biruni, he was the Persian scholar in the court of Mahmud of Ghazni. He visited India in 900 AD. And this book is also known as Kitabul Hind, and it is the history of the Indian literature, it is the book which tells about Indian history and everything. So let's move forward and we will talk. So moving forward, we'll talk about the river systems in India. As river systems of India, it is of utmost importance because India is an agrarian economy. हमारी economy बहुत ज़्यादा agriculture पे depend करती है and हम बहुत fortunate है कि हमें काफ़ी अच्छे fertile river basins मिले हैं. Especially गंगा river basin है जो हम आगे पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा fertile है और जिसकी वजह से हमारे यहाँ agriculture leaps and bounds में progress हो रहा है. So moving from north to south, Indus River system is the first one in the north, and it is an important one because it is the Indus River. It is the river which feeds Indus Valley civilization, and it is 2,880 kilometers of length. Now India, it also got its name from the river Indus. Now अब ये निकलती कहाँ से है? इंडस निकलती है मानसरोवर लेक से, जो कि तिब्बत में है. ये भी हिमालयन रिवर सिस्टम का एक पार्ट है. Now इंडस की और भी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको हम पंचनद बोलते हैं. झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज. हम भी उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. पर पहले जो इंडस रिवर है, जो मेन रिवर है हमारी, वो इंडिया में आती है लद्दाख और जंस्कार रीजन में, और ये फिर आगे गिलगिट और बाल्टिस्तान रीजन से होते हुए पाकिस्तान में फ्लो करती है, और फिर पाकिस्तान में मेन मेन एरियाज को कवर करते हुए ये अंत में जाके कराची के पास अरेबियन सी में मिल जाती है. तो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इंडस की? पहले तो हम माइनर ट्रिब्यूटरीज देखते हैं. एक तो जस्कार रिवर है जो लेह में मिलती है. फिर इंडो चाइना रिवर के पास एक धार रिवर है. उसके बाद स्कर्दू रिवर है जो कि श्योक में मिलती है इससे. उसके बाद और भी ट्रिब्यूटरीज है जैसे गिलगिट, गरतंग, द्रास, सिगेर और हुंजा. इसकी एक और मेन रिवर है, ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर, जो कि अफगानिस्तान से आती है और ये से अटोक में आके मिलती है जो कि पाकिस्तान में है. और उसके बाद जो पंजनद सिस्टम है हमारा, झेलम, यहाँ पे है देखो झेलम, देन चिनाब, रावी, और यहाँ पे सतलज में ब्यास और सतलज मिलके सतलज है यहाँ पे है. और ये जो सिस्टम है पंजनद, ये आके मिलता है जस्ट अबव द मिठानकोट, और ये
फिर आके इंडस में मिल जाता है और फिर इंडस धीरे नीचे जाके मेन रीजन्स ऑफ पाकिस्तान से होते हुए ये कराची के पास अरेबियन सी में मिल जाती है। इस पे एक इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट जो है वो है नीमू बागजो पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद अगर हम इंडस की बात करते हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी की भी बात होती है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी? ये साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और एक ये वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। ये वाटर शेयरिंग ट्रीटी कंट्रीज के बीच में होती रहती है क्योंकि कोई कंट्री रिवर के अपस्ट्रीम में पड़ता है, कोई डाउनस्ट्रीम में, तो यूजुअली वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 को एक ये वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन की थी। द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान के बीच में हुई थी। उसमें क्या था कि 20% ऑफ द वाटर विल बी केप्ट बाय इंडिया और जो रेस्ट है वो डिस्चार्ज कर देंगे। अब 20% ऑफ द वाटर में आता क्या था? जैसे जो रिवर सिस्टम है इसमें ऊपर की जो 3 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, इसका पानी डायरेक्ट पाकिस्तान को जाएगा, जबकि जो नीचे है ब्यास, सतलज और रावी, ये 3 रिवर्स, इसका पानी इंडिया रखेगा एंड दैट अमाउंट्स टू द 20% वाटर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। अब हम इंडस की जो मेन ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली आती है झेलम रिवर। झेलम कहाँ पे ओरिजिनेट करती है? वेरीनाग में। इसका ये नोट डाउन, ये एक क्वेश्चन आ जाता है एफकैट में। फिर और ये मिलती कहाँ है? चेनाब से झेलम जाके मिलती है त्रिमू में। उसके बाद एक झेलम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ये वूलर लेक। वूलर लेक एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक ऐसे शेप के होते हैं, जब रिवर ऐसे टर्न्स लेती है तो इसमें ये वाटर बॉडीज जो फॉर्म होती हैं इनको बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। ये झेलम रिवर में है, वूलर लेक फॉर्म करती है जो कि श्रीनगर कश्मीर में है। अब झेलम रिवर पे जो डैम्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक तो उरी डैम है जो कि 480 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है इन दी उरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, और एक है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये 330 मेगावाट का है और ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा रिवर, जिसको हम नीलम भी बोलते हैं, उस पे सिचुएटेड है। और इस पे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है, बट वो खारिज कर दिया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नाउ अब आते हैं चेनाब रिवर पे, जो सेकेंड मेन ट्रिब्यूटरी है। तो चेनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? बारालक्शा पास इन द लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जस्कार रेंज। ये लाहौल स्पीति वैली हिमाचल में है और ये दो रिवर से फॉर्म होती है, चंद्र और भागा रिवर, जो कि आके कहाँ मिलती है? टंडी। टंडी भी हिमाचल प्रदेश में है। और फिर ये जाके पाकिस्तान में सतलज से मिल जाती है आफ्टर रिसीविंग वाटर फ्रॉम झेलम एंड रावी। और अब आती है सतलज रिवर, जो कि कहाँ से निकलती है? रकास लेक। गाइस प्लीज नोट इट डाउन, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये आते हैं एग्जाम में। ये भी मानसरोवर लेक के पास है और इसको हम लोग तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? लांगचेन खम्बाब। और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है सतलज? सतलज शिपकीला पे एंटर करती है। इसमें भी बहुत सारे, स्पेशली हमारा जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है वो इसी पे सिचुएटेड है। आगे हम डैम सेक्शन में उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आती है ब्यास रिवर। अब ब्यास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ये ब्यास कुंड है रोहतांग पास में, वहां से ओरिजिनेट करती है और फिर ये जो कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल है वहां से के थ्रू फ्लो करती है और आगे आके ये इधर ब्यास और सतलज, ये हरिके बैराज पे आके सतलज से मिल जाती है। हरिके बैराज ही वो जगह है जहां से इंदिरा गांधी कैनाल निकाला गया है, जो कि पूरे वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कि एरिड है, डेजर्ट रीजन है, उसको उसका वो करता है, पानी देता है और इसकी वजह से वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया है। फिर जो रावी रिवर है, रावी भी रोहतांग पास के पास ही निकलती है। रोहतांग यहाँ पे है हिमाचल में और ये कुल्लू हिल्स के थ्रू फ्लो करती है और ये कौन सी वैली से फ्लो करती है? चंबा वैली से। उसके बाद आता है गंगा रिवर सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया क्योंकि दिस इज caters टू द नीड्स ऑफ द प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, विच इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड रीजन। सो द रिवर गंगा की जो लेंथ है वो 2510 किलोमीटर्स है एंड इट इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ हिंदूज। इसका बहुत ही ज्यादा कल्चरल और माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी है और स्पेशली द हिंदू रिलीजन के लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So the Ganga river, it rises from the Gangotri Glacier near Gomukh in Uttarkashi district of the Uttarakhand state. पर उसके पहले जो प्रयाग है, प्रयाग आर दी संगम, द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स ऑफ द स्मॉलर रिवर्स जिनसे गंगा बनती है।
तो वील नो अबाउट देम। तो देवप्रयाग है, जिससे देवप्रयाग दो मेन रिवर से बनता है, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है, और ये दोनों मिलके ही गंगा बनाती है। तो पहले गौमुख से भागीरथी निकलती है, और वो आके जब अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, तो हमारा गंगा फॉलो होता है। लेकिन उसके पहले और अलकनंदा रिवर में और भी प्रयाग से, जैसे कि रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर से आके मिलती है ना। मंदाकिनी वो रिवर है जो केदारनाथ रीजन से फ्लो करती है, और जब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए थे 2013 में, जब केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी, तो मंदाकिनी रिवर ही बहुत ज्यादा ओवर फ्लडेड हो गई थी बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज इन द माउंटेनियस रीजन्स। उसके बाद है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग है नंदकनी रिवर और अलकनंदा रिवर से, और ये जाके अलकनंदा बनाता है जो मंदाकिनी में जाके मिलती है। फिर है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग इज ऑफ पिंडर रिवर और अलकनंदा रिवर। एंड देन विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग is of Dhauli Ganga and Alaknanda river. So guys, one thing is to be noted here is that Alaknanda river है सारे ही प्रयाग में, और उसमें आके एक एक नदी मिलती है, फिर वो आगे जाके दूसरे से मिलती है, एंड दैट्स व्हाई these प्रयाग्स आर formed. Now the main प्रयाग भी है जो confluence of गंगा एंड यमुना कहा जाता है, जिसको प्रयागराज बोलते हैं। इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, और द प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। सो अब इसका ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की है इंपॉर्टेंट, तो सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है जो गंगा की है वो यमुना रिवर है। तो यमुना रिवर इट ऑरिजिनेट्स एट बंदरपूछ रेंज इन यमुनेत्री। यमुनेत्री ग्लेशियर है बंदरपूछ में, एंड इट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अभी हम आगे जब मैप देखेंगे उसका, तब हमें पता चलेगा कि राइट बैंक लाइक जैसे ये मेन रिवर है, तो इस बैंक से जो राइट बैंक पे आती है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है, और लेफ्ट वाली ऐसे। तो गंगा की जो मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, एक तो वो ये यमुना है और दूसरी चंबल है, और भी रिवर्स है। और जबकि लेफ्ट बैंक बहुत सारी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी घाघरा है, गंडक है, कोसी है, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। Now we will look at the Ganga river system in detail. So Ganga river system here it is in Uttarkashi, it originates the Ganga river, और इसके ये यहाँ से होते हुए इसका कॉन्फ्लुएंस होता है यमुना से प्रयागराज में। उसके बाद ये बनारस पटना होते हुए ये यहाँ पे आके बंगाल में आके सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है, और यहाँ पे आके ये इफ यू सी इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया होते हुए बांग्लादेश में गंगा एंड जो है ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में इट इज नोन एज जमुना, ये दोनों मिलके मेघना बनाते हैं, एंड देन गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा। सो ये दोनों मिलके मेघना रिवर बनाते हैं, और ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। सो जब पहले तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, स्मॉलर रिवर्स जो एक मेन रिवर में कंट्रीब्यूट करती हैं, लाइक ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है छोटी छोटी रिवर्स, और इधर राइट बैंक जो आके गंगा में मिलती जाती है। फिर जब ये सी में मिलना होता है तो ये रिवर्स सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म करता है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, स्मॉलर रिवर में अगेन डिवाइड हो जाता है। तो जैसे ये फरक्का बैराज है हमारा, और इसके पास ये हुगली रिवर, एक ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल और की कैपिटल और इंडिया की कल्चरल कैपिटल जिसको कह सकते हैं, वहां से ये होते हुए ये आके इधर बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और ऐसी बहुत सारी स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। तो अब अगर हम पहले बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की, तो ट्रिब्यूटरीज में सबसे जो मेजर है वो है यमुना। तो यमुना कहाँ से निकलती है, ये बंदरपूछ रेंज है, और यहाँ पे यमुनेत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, और ये हमारे जो नेशनल कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां से पास करते हुए आगे आगरा में आती है, और फिर इसमें इट इज ऑल्सो टेकिंग द वाटर्स ऑफ चंबल। चंबल रिवर है जो, और इसको लेते हुए ये प्रयागराज में उससे मिल जाती है। सो यमुना एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और फिर जो नेक्स्ट है ट्रिब्यूटरी एक मेजर, वो है चंबल ना। चंबल ऑरिजिनेट्स ये महू डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, यहाँ से निकलती है, और ये बेतवा और केन रिवर्स का पानी लेते, बनास रिवर है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसका पानी लेते हुए ये जाती है इटावा डिस्ट्रिक्ट में। इटावा इज इन यूपी, और वहां पे ये जाके उससे मिल जाती है यमुना से, और फिर ये आगे जाके गंगा में मिल जाती है। और इधर से ये बेतवा रिवर है, बेतवा रिवर भी एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की, जो कि यमुना में मिलती है। और ये जो केन और बेतवा रिवर है, इनके बीच रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इंटरलिंकिंग का, केन बेतवा इंटरलिंकिंग, ताकि इन दोनों रिवर्स से को कैनाल्स के थ्रू इंटरलिंक करके इस पूरे रीजन को एग्रीकल्चरल के लिए थ्रू इरिगेट किया जा सके।
पर इसके वजह से एक इन्वायरमेंटल कंसर्न रेज हुआ था, और क्या था, वो था कि जो अपना एक टाइगर रिजर्व है, बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है. आई वॉन्ट यू गाइज टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व इज इन थ्रेट बिकॉज ऑफ दिस केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट. सो अब हम और बात करेंगे. अभी तो मेजर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी वो थी यमुना एंड चंबल ऑफ गंगा. अभी हम बात करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की. लेफ्ट बैंक में काफी सारी रिवर्स है. तो पहली रिवर जो है इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है गोमती रिवर. तो गोमती रिवर ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये लखनऊ जो कि यूपी का कैपिटल है वहां से पास करती है. इट ओरिजिनेट्स इन पीलीभीत. पीलीभीत में देयर इज अ लेक, गोमत लेक, वहां से निकलती है और ये जाके गाजीपुर जो कि बनारस के आगे थोड़ा सा एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी बिहार बॉर्डर पे, वहां जाके ये मिल जाती है. तो ये गोमती रिवर या गोमत ताल से पीलीभीत में निकलती है. गाइस प्लीज नोट इट डाउन. और ये आके गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है. उसके बाद एक जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर है वो है अपनी घाघरा रिवर. ना घाघरा रिवर निकलती है तिब्बत से. तिब्बत में इट इज तिब्बत में मापचा चुंग ग्लेशियर है, वहां से निकलती है और ये आते हुए नीचे आती है. एंड देन छपरा में, छपरा इज इन बिहार, यहाँ आके ये गंगा से मिल जाती है. इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज है, एक सरयू है, रक्ती है, और इसको घाघरा रिवर को नेपाल में किस नाम से बुलाते हैं, कर्नाली. और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है. उसके बाद एक और राइट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है स्मॉलर, जिसको कहते हैं रामगंगा. रामगंगा निकलती है नैनीताल से और ये यहाँ पे आ जाती है कन्नौज. कन्नौज इज इन उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ये आके गंगा से मिल जाती है. उसके बाद और भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है. एक है शारदा रिवर. शारदा रिवर जो है वो नेपाल से निकलती है. हियर इट इज इन नेपाल, शारदा रिवर, और ये आके मिल जाती है. इसका शारदा रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलती है, मिलाम ग्लेशियर से, और ये घाघरा को ज्वाइन करती है आके बरहम घाट में. दिस इज घाघरा, और यहाँ पे ये शारदा रिवर आके बरहम घाट में इसको ज्वाइन कर लेती है. उसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है ट्रिब्यूटरी वो है गंडक. गंडक गंडक भी नेपाल से निकलती है और इसको कल्याणी बोलते हैं. और फिर ये सोनपुर है पटना से थोड़ा आगे, वहां आके ये गंगा में मिल जाती है. उसके बाद और भी है रिवर्स, जैसे कि कोसी रिवर है जिसमें 3 रिवर्स हैं, अरुण, सून कोसी और तामूर, जो कि माउंट एवरेस्ट से निकलती हैं और आके फिर क्या कहते हैं उसमें मिल जाती हैं गंगा में. और कोसी का एक निकनेम भी है, सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं इसको. तो गाइस प्लीज नोट इट डाउन. द नेक्स्ट रिवर इज दामोदर रिवर. दामोदर रिवर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में राइज करती है और ये झारखंड होते हुए गंगा में आके मिल जाती है. एंड इट इज actually tributary of Hooghly. Hooghly was the distributary of Ganga. So the Barakar river भी एक important tributary है दामोदर की. उसके बाद आती है महानंदा river. So Mahananda river it rises in Darjeeling hills and it is the last left bank tributary of the Ganga river in India. तो मूविंग फॉरवर्ड गंगा रिवर सिस्टम जो है जाके ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलती है. तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. ना ब्रह्मपुत्र रिवर ये भी मानसरोवर से निकलती है तिब्बत से, और इसको तिब्बत में किस नाम से बुलाते हैं, सांगपो. और इंडिया में आती है ये पहले आती है इंडिया में सियांग और दिहांग नाम से. सॉरी दिस इज नॉट तिब्बत, इट इज इंडिया. और इस ब्रह्मपुत्र की एक खास बात यह है कि इसका जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, माजुली आइलैंड, जो कि कहाँ पे, आसाम में, वो यहाँ पे सिचुएटेड है. नाउ माय क्वेश्चन फॉर यू गाइस इज, माजुली आइलैंड में एक फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट है जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है. तो आई वांट यू गाइस टू फाइंड आउट हु ही इज एंड व्हाट वाज द थिंग ही डिड जिसकी वजह से उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. नाउ इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं. ट्रिब्यूटरीज में अगर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पहली तो है धनसिरी रिवर, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, और ये कहाँ से निकलती है, लियासांग पीक है नागालैंड का, और ये गोलाघाट और दीमापुर, गोलाघाट आसाम में है और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट नागालैंड से पास करती है. नाउ दो और रिवर्स हैं, लोहित और दिबांग, जो कि अरुणाचल में मिलकर ब्रह्मपुत्र बनाती हैं. तो
लोहित जो है ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये निकलती कहाँ से, मिश्मी हिल्स से फ्लो करती है। और इसमें दो दो सिटीज हैं, लोहित और ब्रह्मकुंड, जो कि ब्रह्मपुत्रा के थ्रू होते हैं, लाइक ब्रह्मपुत्रा इनके थ्रू पास करती है। उसके बाद है दिबांग रिवर, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम से फ्लो करती है। This is the map of Brahmaputra river system. Here it originates in Mansarovar Lake. This is a very this, इन रिवर्स को इसीलिए हिमालयन रिवर सिस्टम बोलते हैं क्योंकि ये एक ही, इफ यू लुक, एक काफी ऐसा रीजन है जहाँ से सारे ही रिवर्स निकलते हैं। कुछ वेस्ट की तरफ फ्लो कर जाते हैं और कुछ राइट की तरफ, सो ईस्ट की तरफ, सॉरी। सो ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकलती है मानसरोवर लेक से और ये आती है और फिर तिब्बत में ये यू टर्न लेती है इस पॉइंट पे और फिर इंडिया आती है। तो इधर ये लोहित और ये दिबांग रिवर्स मिलके ब्रह्मपुत्रा बना लेती है। तो वी टॉक्ड अबाउट सुबनसिरी जो कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। और फिर आगे इसमें और भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लाइक लोहित रिवर हो गई, दिबांग रिवर हो गई, सुबनसिरी। ना सुबनसिरी रिवर जो है इसको बोला जाता है ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये दिस इज द सुबनसिरी रिवर, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये तिब्बत रीजन से निकलती है, हिमालयाज के। और इसको गोल्ड रिवर बोला जाता है क्योंकि दिस रिवर इज फेमस फॉर गोल्ड डस्ट, दैट इज वाई सुबनसिरी, सुबनसिरी इज द तद्भव फॉर्म ऑफ द स्वर्ण। उसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है वो मानस रिवर है। मानस रिवर, इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड इट इज नेम्ड आफ्टर मनसा। मनसा इज द मानसा, एक्चुअली मानसा इज द सर्पेंट गॉडेस ऑफ इंडियन माइथोलॉजी। सो मानस नेशनल पार्क जो है आसाम का, और क्या कहते हैं, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मानस रिवर वैली में ही निकले हुए हैं। दिस इज द मानस रिवर और ये भूटान और आसाम से आती है और फिर ये आके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिवर है तीस्ता रिवर। तीस्ता यहाँ पे है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है ये कंचनजंगा में, सिक्किम में। और ये आके सिक्किम से होते हुए, दार्जिलिंग होते हुए आके ब्रह्मपुत्रा में, बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। Moving forward, we'll talk about the peninsular rivers of India. So peninsular rivers are those rivers which cater to the needs of the peninsular region of India, that is this region. And mainly यहाँ पे 6 rivers हैं, महानदी, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada and Tapti. Now one important point to be noted is that these 4 rivers, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, they are east flowing and they drain into Bay of Bengal, while Narmada and Tapti, they are west flowing and they drain into Arabian Sea. So the first important river is Godavari. Now Godavari is the longest and biggest river of South India and इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा. Guys, please keep noting down the highlighted points because they are important and they might be asked in the examination. Now Godavari is the second longest river in India and the longest in South India. और ये originate कहाँ से होती है? It originates from Nasik in Maharashtra. तो दिस इज द गोदावरी रीजन, जो कि नासिक रिवर, जो कि नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। नासिक इज ऑल्सो इन द एशियन टाइम्स कहा जाता है दिस वाज द पंचवटी रीजन, जहाँ पे लॉर्ड राम ही वेंट फॉर द वनवास और वहीं से ही निकलती है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। तो द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, गाइस प्लीज कीप नोटिंग इट डाउन। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर प्रवरा, मूला, मंजरा एंड मनेर, and the smaller one Pedavagu. And the left bank tributaries या upper bank बोल सकते हैं in case of Godavari, वर्धा, पेनगंगा, धारना, वेनगंगा and इंद्रावती and सबरी से होते हुए ये इन सारी ट्रिब्यूटरीज का पानी लेते हुए ये रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है and it forms delta. Now the characteristic feature of east flowing rivers is that they form delta. That is, first they divide themselves into distributaries and in a triangular pattern they merge into sea. But the characteristic feature of west flowing rivers is that they form estuaries. Now estuaries are narrow channels, water channels,
जो कि सी और रिवर के बीच में होते हैं, फॉर्म होता है, एंड देन रिवर उसमें ड्रेन करती है बिकॉज ऑफ द स्लोप, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट ऐसे स्लोप है, सो दीज दे फॉर्म इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड देन डेल्टास, जबकि ये रिवर्स जो होती है दे गेट हैवी ईस्ट फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द ऑल द सेडिमेंट दे आर कैरिंग, बट जो एस्चुरीज होती हैं दे फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी, एंड इसकी वजह से दे फॉर्म नैरो चैनल्स एज एस्चुरीज एंड देन दे मर्ज इनटू सी. Now the next important river is महानदी. Now महानदी ये ओरिजिनेट करती है दंडकारण्य रीजन में, छत्तीसगढ़ में, और इसमें 900 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, और इस पे एक हमारा इंडिया का जो लार्जेस्ट अर्दन डैम है, हीराकुड डैम, ये भी बना हुआ है उड़ीसा में, और ये एक फेमस हमारा पिलग्रिमेज साइट है पुरी में, यहाँ से ये पास करती है. सो महानदी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, दिस इज द महानदी रिवर, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, एक तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईव, चोक, ओंग, तेल, और ये चिल्का लेक भी यही रिवर की वजह से ही फॉर्म होता है, और ये भी डेल्टा, इफ यू सी लुक एट द पिक्चर, डेल्टा बना के वो उड़ीसा में जाके बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज कृष्णा रिवर. नाउ इस रिवर पे बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, और इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी. एक इंपॉर्टेंट तो ये तुंगभद्रा रिवर है. तो ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है? महाबलेश्वर से, जो कि वेस्टर्न घाट में है, महाराष्ट्र में. और ये डिजास्टर्स रिवर है क्योंकि इसमें काफी सॉइल इरोजन हो जाता है मॉनसून सीजन के टाइम. ये ब्लैक कॉटन सॉइल वाले रीजन से पास करती है शायद इस वजह से. और इस पे जो डैम्स है, अलमाटी डैम, श्रीसाइलम डैम, इसकी ये डैम की वजह से अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिस्प्यूट था. नागार्जुना सागर डैम एंड प्रकाशम बैराज, इस पे जो मेजर डैम्स हैं. नाउ ये कौन कौन सी रीजन से पास करती है? सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, कराड, सांगली, बागलकोट, श्रीसाइलम, अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी, डिफैक्टो कैपिटल है, एंड विजयवाड़ा. यहाँ से होते हुए ये भी डेल्टा बना के जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में. सो इसकी भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज एक तो है कोयना. कोयना रिवर जो है, इसकी वजह से कोयना डैम बना है, और कोयना डैम क्यों फेमस है? रिजर्वॉयर इंड्यूस सिस्मिसिटी की वजह से. रिजर्वॉयर इंड्यूस सिस्मिसिटी क्या होती है? जब पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, रिजर्वॉयर्स दे आर काफी हैवी स्ट्रक्चर्स, इसकी वजह से अर्थ पे उस रीजन में सिस्मिसिटी इंड्यूस हो जाती है और अर्थक्वेक्स आते हैं. सो कोयना डैम की वजह से आया है, इस पे भी ये एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है. अब कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? एक तो घटप्रभा रिवर है, मालप्रभा, तुंगभद्रा, वेदावती, और इसके बाद इधर भीमा, भीमा मुन्नेरू, और ये जाके एंड में डेल्टा बनाते हुए ये भी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. फिर एक और है कावेरी रिवर. कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी बहुत फेमस है, जो 4 स्टेट्स थे यूटीज, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और पौंडीचेरी के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर इस पे काफी डिस्प्यूट बना रहता है, और इसको क्या बोलते हैं? पोन्नी रिवर. और ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तालकावेरी. गाइस, जितनी भी रिवर्स हमने पढ़ी है, हमने उसके ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ से ओरिजिन किया है वो पढ़ा है, और वो प्लीज नोट इट डाउन, एंड हो सके तो एक टेबल बना लो, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू. So this river originates at Talkaveri in Brahmagiri ranges in Coorg, Karnataka. Now this river, it merges into Bay of Bengal to the south of Cuddalore, Tamil Nadu. और ये भी डेल्टा बनाती है, कावेरी रिवर डेल्टा. और ये भी क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया. कावेरी रिवर ऑफ डेल्टा को क्या बोलते हैं? गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया. प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. Now we'll talk about the west flowing rivers of India. West flowing तो बहुत सारी rivers हैं, पर जो main है दो, नर्मदा is located, और ताप्ती. So नर्मदा, it is located mainly in मध्य प्रदेश, और इसको also known as रेवा river. So where does it originate? It originates from Mackal ranges near Amarkantak. Guys, again I'll say the origination point of all the rivers, they are important. अगर अभी नहीं लिखा है तो please
उसको बैक करो वीडियो को और जाके एक एक रिवर का ओरिजिन जरूर लिखो। और जैसे कि शुरू में ही हमने पढ़ा, इंडस रिवर निकलती है मानसरोवर से, उसके बाद झेलम, वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है। ऐसे करके सारी रिवर्स का एक टेबल काइंड ऑफ बना लो, उनका ओरिजिन, डेस्टिनेशन, मेजर ट्रिब्यूटरीज और जो मेजर सिटीज से वो पास करती हैं। अब नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है कोलार रिवर, शक्कर रिवर, दूधी रिवर, तवा रिवर और हेरन रिवर। और इस पे जो इम्पोर्टेंट डैम्स बने हुए हैं, महेश्वर डैम, सरदार सरोवर डैम। ना सरदार सरोवर डैम बहुत ही फेमस है। और इसके पास एक लेक है, लेक पंचमुली लेक, जो कि पंचमुली लेक में से अभी रिसेंटली कुछ किया गया था, एक स्पीशीज थी उनको हटाया गया था क्योंकि वो विजिटर्स के लिए थ्रेट बन रहे थे वहां पे। सो आई वांट अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, व्हिच स्पीशीज वर रिमूव फ्रॉम दिस प्लेस? एंड इंदिरा गांधी सागर डैम। नाउ द ताप्ती रिवर जो है, इसको ये भी मध्य प्रदेश में है और ये कहाँ से निकलती है? मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से। इस पे जो डैम्स हैं वो है काकरापार डैम, उकाई डैम, गिरना डैम आर दी मेजर प्रोजेक्ट्स। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है सूकी, गोमई, अरुणावती, वगूर, अमरावती, पूर्णा, मूना एंड सिपना। This is the map of the west flowing rivers. Now this river, if we look at Luni, it is originating from the Haldighati region. और ये क्यों important है? Because this is the river that has inland drainage. If you look at the river, ये किसी major river में जाके नहीं मिल रही है और ये सी तक भी नहीं पहुंच पा रही है। ये राजस्थान में ही रेत में, डेजर्ट में ये खत्म हो जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं, ऐसे काइंड ऑफ ड्रेनेज को बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज। सो लूनी रिवर इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल है। देन साबरमती रिवर भी है, ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, माही, एंड द मेन वंस नर्मदा एंड तापी रिवर। और अगर हम डीप डाउन साउथ में जाएंगे तो गोवा में एक रिवर है मंडोवी, जिसकी ट्रिब्यूटरीज है जुआरी, मंडोवी रिवर। Sorry, my writing is not that good. मंडोवी रिवर, जिसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जुआरी, वो भी गोवा में के थ्रू है, ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। So guys, now we will discuss about the dams. So dams बहुत ही important होते हैं किसी भी country के लिए, because they not only encourage the judicious use of the water resources available, उनसे हम renewable energy के लिए hydroelectric projects बनाते हैं जो कि environment conservation के लिए बहुत ही important है, plus floods control होते हैं, rivers को tame किया जा सकता है, और डैम्स से और भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग जनरेट होता है, टूरिज्म जनरेट होता है। एंड इंडिया में बहुत सारे डैम्स हैं, सो वील रीड अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट विल कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, वी फर्स्ट विल नो अबाउट सलल डैम। सलल डैम जो है चेनाब रिवर पे है, JNK में। और ये रिवर के अलावा अभी रिसेंटली एक और डैम था इधर झेलम रिवर पे JNK में, किशन-गंगा प्रोजेक्ट, जिसपे पाकिस्तान काफी प्रोटेस्ट कर रहा था, बोल रहा था कि वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी है, जबकि ऐसा नहीं था। तो किशन-गंगा रिवर जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, नीलम रिवर उस पे है। सो किशन-गंगा रिवर प्रोजेक्ट था। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था राटले, जो कि किस पे था? चेनाब रिवर पे। उस पे भी काफी सारा हाइड्रो प्रोजेक्ट था इंडिया का 625 मेगावाट का, तो जिसपे पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा था बोलते हुए कि अगेन दिस इज इंडस वाटर वायलेशन, जबकि ऐसा नहीं था। सो नाउ दी कमिंग डाउन एक और इम्पोर्टेंट है जो कि ये है चमेरा। नाउ चमेरा इज ऑन द रिवर सतलज, सॉरी चमेरा इज इन द रिवर रावी और HP पे है। और आगे जब रावी और सतलज का जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, हरिके बैराज का यहाँ पे है, और हरिके बैराज की वजह से एक कैनाल सिस्टम जनरेट हुआ है इंदिरा गांधी, जो कि ये जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा इंडिया का, जहाँ पे रिवर्स नहीं है, एरिड है, वहां को इरिगेट करने के लिए काफी हेल्पफुल रहा है। सो इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हरिके बैराज। ना हरिके बैराज कहाँ पे है? वो है कॉन्फ्लुएंस ऑफ रावी एंड सतलज पे। उसके बाद नीचे है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल काफी इम्पोर्टेंट और हाईएस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इंडिया का, और सेकेंड हाईएस्ट है, नॉट द हाईएस्ट। सो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारा ये नरौरा,
नरौरा जो है इधर यमुना पे है ये डैम उत्तर प्रदेश में, और इधर चंबल पे काफी सारे डैम्स बने लाइन से, ये गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये सारे डैम्स जो है वो चंबल पे बने हुए हैं, एमपी और राजस्थान में है। उसके बाद नर्मदा, नर्मदा पे एक इम्पोर्टेंट डैम है, ये यहाँ पे, तो नर्मदा पे एक अभी रिसेंटली ही इनॉग्रेट हुआ है जहाँ पे हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, सरदार सरोवर डैम, जो कि है केवड़िया गुजरात में। नाउ इसकी दैट ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड क्वेश्चन। नर्मदा के पास, इस डैम के पास एक लेक है, पंचमुली लेक, जिसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था इस साल सीडीएस में। सो पंचमुली लेक में से एक स्पीशीज है, वहां से उनको हटाना पड़ा बिकॉज दे वर बिकमिंग अ थ्रेट टू द विजिटर्स देयर। सो आई वांट टू नो द आंसर कि वो कौन सी स्पीशीज थे। देन तापी रिवर है यहाँ पे, इस पे एक इम्पोर्टेंट डैम है काकरापाड़ा। अभी प्रवरा, प्रवरा जो कि उसकी ट्रिब्यूटरी थी क्या कहते हैं गोदावरी की, सो प्रवरा रिवर पे ये वाला डैम है, प्रवरा डैम। उसके बाद हम फिर से इधर आते हैं गंगा रिवर सिस्टम में, तो यहाँ पे काफी सारे डैम्स हैं। इंपॉर्टेंट वंस आर रिहांद, फिर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में जो है वो, जो कि ट्रिब्यूटरी है हुगली की, सो दामोदर। उसके बाद बोकारो, फिर यहाँ पे जहाँ पे गंगा से अलग होती है हुगली, फरक्का बैराज के पास, वहाँ पे एक फरक्का बैराज है, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट डैम है हीराकुड डैम। नाउ हीराकुड डैम इज एन अर्दन डैम। सो अर्दन डैम्स क्या होते हैं? डैम्स बेसिकली अगर हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है अर्दन डैम, एक होता है ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि अर्दन डैम अर्थ मतलब मिट्टी के होते हैं। तो ये 15 किलोमीटर्स लॉन्ग है हीराकुड डैम, ये लॉन्गेस्ट अर्दन डैम कहा जाता है इंडिया का। उसके बाद एक नीचे अगर हम साउथ इंडियन रिवर्स पे आए तो कृष्णा रिवर है, इस पे बहुत सारे डैम्स हैं, और ये नागार्जुन सागर डैम है इम्पोर्टेंट। और उसके बाद इसको लेके एक और डैम है यहाँ पे कृष्णा रिवर पे, श्री साइलम डैम, जो सी रिसेंटली काफी न्यूज में था, क्योंकि उसपे श्री साइलम डैम जो है उसपे क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनके रिवर डिस्प्यूट चलता रहता है वाटर शेयरिंग को लेके। एंड उसके बाद ये कोयना रिवर है, कोयना रिवर पे अभी हमने बात की थी कि रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी वाली चीज, तो कोयना डैम है यहाँ पे कोयना रिवर पे, जो कि ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। उसके बाद ये तुंगभद्रा और घटप्रभा पे भी डैम्स हैं। फिर एक ये कावेरी रिवर पे अगर हम आते हैं नीचे तो ये मेट्यूर डैम है। मेट्यूर के अलावा कावेरी पे और भी एक डैम है इम्पोर्टेंट, जिसका है कल्लानई डैम। गाइज नोट इट डाउन, कल्लानई डैम। और उसके बाद जो कृष्णा पे जो रिवर्स हैं उस पे एक और है डैम, जिसका नाम है एक्चुअली वो कावेरी पे है, कृष्णराज सागर डैम, जो कि कर्नाटका तमिलनाडु के उस बॉर्डर पे है, और उस पर भी डिस्प्यूट होती रहती है। और ये बनता कहाँ पे? ये डैम है इधर कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर पे। जो रिवर्स हैं हेमवती और लक्ष्मणा, कावेरी के ट्रिब्यूटरीज हैं इनके कॉन्फ्लुएंस पॉइंट के पास। उसके बाद ये मेट्यूर डैम तो काफी फेमस है ही। और उसके बाद एक ये जो रामागुंडम डैम है, रामागुंडम डैम बना है गोदावरी रिवर पे, ये तेलंगाना में है। और फिर तेलंगाना में और भी डैम्स हैं, एक तो है निजाम सागर डैम। निजाम सागर ओल्डेस्ट डैम है, जो कि बना हुआ है किस पे? मंजरा रिवर पे। मंजरा वाज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। उसके बाद नागार्जुना सागर है जो डैम है, जो कि तेलंगाना और एपी के बीच है, और ये भी कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। सो गाइज उसके अलावा अभी हरिके बैराज के बारे में हमने पढ़ा कि इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम इससे निकलता है। उसके बाद ये रिहांद डैम जो है, रिहांद डैम कहाँ पे? रिहांद रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। और ये रिहांद डैम है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। सो ये इसमें यहाँ पे एक रिसेंटली हुआ था, यहाँ पे लेक है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, पूछ लेते हैं रिहांद डैम कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है। सो गाइज डैम का भी आई सजेस्ट एक चार्ट बना लो इम्पोर्टेंट डैम्स, और इस वीडियो को एक बार और रिप्ले करके देख लेना। तो इम्पोर्टेंट डैम्स एंड देन वो कौन सी रिवर पे है, और इससे काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और इनफैक्ट रिवर्स के लिए भी उनका ओरिजिन पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा, एक वो बना लेना एक चार्ट, ताकि उनका ओरिजिन, उनका डेस्टिनेशन कहाँ पे है और मेजर ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे है। उसके बाद अभी हम अगर रिसेंट की बात करें तो एक 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुए थे। इनको लेके एनवायरमेंटल थ्रेट्स तो रहता ही है पहाड़ों में बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटी, बट अगर हम देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और भी स्पेशली हमारी एनर्जी, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री की एनर्जी नीड्स को केटर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें
ये है रेणुका जी प्रोजेक्ट जो है वो गिरी रिवर पे है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको इनॉग्रेट किया गया, ये 7,000 करोड़ का है। और ये रिवर प्रोजेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो न्यू दिल्ली की सिटी की वाटर नीड्स ये पूरी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। फिर धौला सीप जो था जो ब्यास रिवर पे, सावड़ा कुद्दू पबेर रिवर पे एंड लोहरी सतलज रिवर पे। तो ये इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। और अगर आपको लगता है कोई और इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि मैंने स्किप कर दिया हो तो गाइस प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड let me know. So now this is it. With this I come to the end of this session. And so now आज के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हमारा था कि केन बेतवा इंटरलिंकिंग से जो इन्वायरमेंटल थ्रेट अराइज हुआ है, कौन सा टाइगर रिजर्व उससे खतरे में है। द सेकेंड क्वेश्चन इज कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, मजुली आइलैंड से रिलेटेड है वो क्वेश्चन, और उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि जो पंचमूली लेक है सरदार सरोवर डैम के पास, वहां से कौन सी स्पीशीज को हटाया गया था क्योंकि वो विजिटर्स के लिए थ्रेट बन गई थी। सो गाइज टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिवील द आंसर इन द नेक्स्ट video. Till then, keep revising, keep making short notes and keep practicing. Guys, again I'll say keep practicing practice papers क्योंकि वो बहुत ही important होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। So guys, that will be it from my side today. I hope to see you all in blue uniform someday. So, Jai Hind, keep studying. Jai Hind. Thank you. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।